આપણે ખાલી બોડીની જ એક્સરસાઇઝ જીમમાં કરીએ છીએ. હવે આપણે બ્રેઇન અને બોડીની બંનેની કરવાની, કે જેમ જેમ તમે બ્રેઇનની એક્સરસાઇઝ કરશો ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટીની, એમ બોડીનો ફાયદો થશે, અને જેમ જીમમાં જઈને બોડીની એક્સરસાઇઝ કરશો એમ તમારા બ્રેઇનને ફાયદો થશે. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન હોવું જોઈએ. ખાલી જીમની એક્સરસાઇઝ ન ચાલે, ખાલી ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટીની એક્સરસાઇઝ ન ચાલે. નેક્સ્ટ. તો હવે આપણો બ્રેક ટાઈમ થયો છે. હજી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ તમારે શીખવાનો છે મેડિટેશન, માઇન્ડફુલનેસ. નથી લેવો? શ્યોર? ઓલ ઓફ યુ રેડી? ઓકે, ચલો બેસવા તૈયાર છો ને? ભાગશો નહીં ને? સાસુ નામ ખાઓ. કેમ મારી સાસુના નામ નહીં ભાગીએ? તમારી સાસુ ન હોય તો બાજુવાળાની સાસુ નામ ખાઓ. ખાઓ તો ખરા યાર. ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટીનો એક નિયમ છે કે એકને એક સ્પીકરને સાંભળો ને તો બી તમારું બ્રેન ડેવલપ ન થાય. એટલા માટે અમે સ્પીકર બી બદલી નાખીએ જેથી તમારા એક્સપિરિયન્સથી ચેન્જ થાય. તમારા એક ટીચર, તમે જુઓ એક જમાનો એવો હતો કે આખો ક્લાસ એક જ ટીચર લેતો, ઇતિહાસ એ શીખવે, ભૂગોળ એ શીખવે, બધું એ જ શીખવે. પણ હવે પછી શું થઈ ગયું છે કે દરેક ટીચર જુદા જુદા આવે જેથી તમને તાજગી મળે. કારણ કે નવા નવા એક્સપિરિયન્સ થાય, નવા સ્પીકર કેવી રીતે બોલે છે, કેવી રીતે શીખવે છે, શું કરે છે, બધું થાય. એટલે આપણે ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટીની આજથી શરૂઆત કરું છું. હું જેની પાસેથી મેડિટેશન સમજો છું, શીખો છું, માઇન્ડફુલનેસ શીખો છું, એવા સ્પીકરને આપણે સ્પેશિયલી મેં મુંબઈથી બોલાવ્યા છે, પોતાના ખર્ચે આવેલા છો. તો તમે આપણે એને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન તૈયાર છે? ઇન્ટ્રોડક્શન આમનું તૈયાર છે? દેખાડી દો. તમે સાસુ નામ ખાતા જ ઊભા ન થતા. મેં 9 વાગ્યાનું પ્રોમિસ કર્યું છે, 9 વાગે નીકળી જાજો બધા. ઓકે, તો હવે આપણે નવા એક ટ્રેનરને જે देखाव में सुंदर है, अपना नया ट्रेनर जो दिखने में सुंदर है, सुनने में अच्छा मधुर है और वेरी डायनामिक एंड दिल से बहुत अच्छी है. તમે બધાએ બ્રહ્મા કુમારીની શિવાનીને સાંભળ્યા છે ને? બધા ઇમ્પ્રેસ થયા છો ને? આ શિવાની દીદીનો અવતાર છે, બીજો અવતાર છે. એને જેવી જ મજા આવશે. તમે જો શિવાનીને સાંભળવાની મજા આવતી હશે, તમને સાંભળો છો કે નહીં એના વિડીયો? એક્ઝેક્ટલી અમારા શિવાની દીદી છે જે તમને એકદમ સરસ રીતે મેડિટેશન, માઇન્ડફુલનેસ બધું સમજાવવાના છે. એની ઇન્ટ્રોડક્શન દેખાડી દઈએ છીએ અને પછી હું એમની પાસેથી જ આ બધું શીખું છું, માઇન્ડફુલનેસ અને મેડિટેશન, જે નવો સબ્જેક્ટ છે. તમે વર્ડ સાંભળ્યો છે માઇન્ડફુલનેસ? દેતા હું. તો માઇન્ડફુલનેસ અને મેડિટેશન તે તમે શબ્દ, ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી બી આજે પહેલી વાર સાંભળો, માઇન્ડફુલનેસ બી પહેલી વાર સાંભળશો અને પ્રેક્ટિસ બી કરશો. તમને મેડિટેશનની પ્રેક્ટિસ બી સરસ કરાવવાની છે, જેથી આજે તો સરસ ઊંઘ આવી જ જશે તમને. તમને નવાઈ લાગશે કે આવા સરસ સ્પીકર હોઈ શકે. એકદમ બ્રહ્મા કુમારીના શિવાની. ચલો સ્ટાર્ટ કરો. पर मिलेगी कैसे? मिलिए अपर्णा पांडे. ढूंढते हैं खुशी जो हमेशा रहे, पर मिलेगी कैसे? मिलिए अपर्णा पांडे से, स्माइल एक्सपर्ट जो जिंदगी बदल रही है माइंड और मेडिटेशन ट्रेनिंग से. अपर्णा पांडे सिर्फ माइंड और मेडिटेशन ट्रेनर नहीं है, वो एक रोशनी की तरह है जो आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस की तरफ ले जाती है. एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट होने के नाते वो लोगों को खुद को ठीक करने और अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानने में मदद करती हैं. माइंड पावर, हीलिंग और EFT में सर्टिफाइड अपर्णा ने हजारों लोगों को अपनी अंदरूनी ताकत पहचानने और अपनी जिंदगी बदलने में मदद की है. उनका मानना है कि हर किसी में खुश,
स्वस्थ और खूबसूरत जिंदगी जीने की ताकत है। अपनी ट्रेनिंग के जरिए वो लोगों को अपनी अंदरूनी ताकत को समझने और अपनी जिंदगी को अच्छे से बदलने के लिए प्रेरित करती है। अपने प्रोफेशनल सफर के अलावा अपर्णा को डांस, म्यूजिक और नेचर में खुशी मिलती है। ये उसकी एनर्जी और खुशी का सोर्स है जो उसकी रूह को खुश रखते हैं। उनका मिशन सिंपल है पर गहरा है, अपने चेहरे पर और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। अपनी अंदरूनी मुस्कान को खोलने के लिए तैयार हैं? अपर्णा पांडे के साथ जुड़े और हमेशा की खुशी के सफर पर निकल पड़े। सुबह से आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग इतने पेशेंस से, इतने प्यार से एक स्कूल में अच्छे बच्चों के जैसे एक एक चीज़ को ध्यान से सुन रहे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने सब कुछ एंजॉय किया होगा। और सुबह अमित सर, आर्या सर के कारण हमको इतना तो पता चल गया कि हम में कितनी क्षमता है, हम में कितनी क्षमता है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मगर अगर किसी बॉक्स में कुछ नया भरना हो तो पहले उसको खाली करना पड़ता है। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हाँ, तो उसको खाली करना पड़ता है। तो मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगी आज थ्रू आउट द सेशन। पूरे सेशन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी। आपके हिस्से की एक्सरसाइज आपको फायदा देगी, तो दूसरों को मत देखना, बिंदास करना। यहाँ कोई जज नहीं कर रहा, यहाँ कोई आपको देख नहीं रहा। अपनी अपनी एक्सरसाइज करो और जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो उतना लो। पहली एक्सरसाइज है कि आपको कई बार लाइफ में ऐसा एहसास होता है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में तो है मगर आप उसको निकाल नहीं पाए। कोई ऐसा दर्द जो आपके अंदर है मगर वो अंदर ही है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं और हम उसको अंदर इकट्ठा करते चले जाते हैं और समय के साथ वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में यही ब्यूटी है कि वो आपके अंदर के गार्बेज को, कचरे को बाहर निकालता है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको क्लीन कर देते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी ये है कि आपको आंखें बंद करनी है। और हम सबने छोटा बच्चा देखा है ना, छोटे बच्चे जब उनको बोलना नहीं आता, जब उनके मुंह में शब्द नहीं बने होते, समझ नहीं होती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो वो क्या करते हैं, बा बा बू बू, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं उनके मुंह से मगर कुछ मीनिंगलेस होते हैं, बट हम उसको भी इंजॉय करते हैं। वो बच्चा ना मन से हमेशा खुश रहता है, वो जो मन आता है वो करता है, जो जैसे जीना चाहता है वैसे करता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती, कौन मुझे सुन रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे जानता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज कुछ पल के लिए बच्चे बन जाते हैं और हम सब आंखें बंद करके जो मन में आए वो बोलते हैं। जो भी ऐसी बात है जो आपको लगता था आपको किसी से कहनी थी, आज कह डालो। यहाँ पे तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है। और इतने लोग जब यहाँ पे सब इकट्ठा बोल रहे होंगे वैसे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना? तो जो भी है उसको क्लीन कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को क्लीन करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको नया सीखने का और नया अप्लाई करने का पोटेंशियल आपका इम्प्रूव होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे थोड़ा सा जोर से बोलिए। क्या आप सब तैयार हैं? और जोर से। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं। आप सब आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद। तीन बार गहरी सांस लेके छोड़ेंगे। गहरी सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे धीरे सिर्फ बोलना शुरू कीजिए। दिमाग नहीं लगाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है,
सिर्फ मुंह में जो आए उसको बोलना है, चाहे सिर्फ आवाजें निकले वो भी निकलने देना, चाहे शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो भी निकलने देना। जितना निरर्थक है उतना अच्छा है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग, स्पीकिंग एंड मेकिंग साउंड्स। आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए। प्लीज जितना ज्यादा तेज बोल सकते हो उतना ज्यादा, नॉन स्टॉप। laughing Tera. सबको करना है। रोना आए तो रो लेना, नाचने का मन करे नाच लेना, हंसने का मन करे हंस लेना, मगर आज ये घड़ा खाली करके यहीं पे जाना। और अभी तो बहुत भरा है। निकल जाने दीजिए सब। आपकी हर एक आवाज के साथ आपका मन शांत हो रहा है, आपके अंदर का कचरा बाहर निकल रहा है और आप अपने से और बेहतर तरीके से जुड़ पा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें खोलेंगे, आंखें खोलेंगे। कैसा था, कैसा लगा? जोर से बोलिए। स्लाइड चेंज करें। ओके, जब तक स्लाइड चेंज हो रही है, मुझे स्लाइड रटी हुई है, मैं बता देती हूँ। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये दो शब्द आपने बहुत रेगुलरली सुने होंगे, जो हम बहुत, और खासतौर से कोविड के बाद ये अवेयरनेस और ज़्यादा आ गई है कि मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए। मगर ये होता क्या है एक्चुअली, हम पता है दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये भी समझते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक ही है, जबकि ये एक नहीं है। तो इसको समझना और इसको जीना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने दिमाग का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने माइंड का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसी तरीके से अपनी आत्मा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एक कॉम्बिनेशन है बॉडी, माइंड और सोल की। अब आप सोचो, अगर मैं आपकी आत्मा को आपसे अलग कर दूं, क्या बचेगा? और मैं अगर आपके शरीर को अलग कर दूं और आत्मा और माइंड को छोड़ दूं, तो क्या बचेगा? तो हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस कुछ भी करना, अपना पूरा माइंड लगा के, प्रेजेंट में रह के, बिना जज किए। समझ आया? कोई भी काम प्रेजेंट में रह के अपने 100% जागरूकता के साथ करना। आजकल हम सबको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हम खाना टीवी देखते देखते खाते हैं। ईमानदारी से बताओ, कितने लोग खाना टीवी देखते देखते खाते हैं? देखो,
50-60% लोगों के हाथ उठे हुए हैं, है ना। जो टीवी में देखते हैं वो मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं। मोबाइल की भी बीमारी हो गई है, बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं करते हैं तो, मगर मोबाइल भी हमको आजकल कंट्रोल कर रहा है, बल्कि वो तो हमारी सहूलियत के लिए है, मगर मोबाइल हमको कंट्रोल करने लगा है और हम मोबाइल को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। तो माइंडफुलनेस में क्या है, आप जो भी करते हो सुबह से लेकर रात तक पूरी जागरूकता के साथ करो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप में से कौन बता सकता है कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आया है? क्यों आया है? आनंद में आने के लिए, ओके, हिस्ट्री बनाने के लिए। अब ये हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? तो ये क्लैरिटी हो ना कि आप जिस भी पर्पस से यहाँ पे आए हो, वो पर्पस क्या है, वो कारण क्या है, वो जब आपको पता होगा तभी आप कुछ उस दिशा में जा पाओगे, नहीं तो आप इधर उधर डोलते रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा। माइंडफुलनेस प्लीज साइड कर दीजिए। अच्छा, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि फ्रिज खोला और उसके साथ सामने कुछ पल के लिए खड़े रहे और समझ नहीं आया कि करना क्या था? होता है ना, होता है। ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट, जब हमको माइंडफुलनेस मिस हो जाता है, जब हम काम पूरी जागरूकता के साथ नहीं करते तो एब्सेंट माइंडेडनेस आ जाती है। पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, सिर्फ कर रहे हैं। इवन मैं तो बोलूँ आजकल हम लोग अपने साथ भी कुछ इसी तरीके का जीवन जी रहे हैं। हम भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कब तक भागेंगे ये नहीं पता। मगर जो लोग माइंडफुल होते हैं ना, उनको अपने साथ घटती हुई हर एक घटना के बारे में 100% पता होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इवन आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हर एक बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण है और वो भी हमको पता होता है कि वो क्यों हो रहा है। ये भी एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। फोन मेरे पॉकेट में है और मैं यहाँ वहाँ फोन ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन का है। ये भी एक एब्सेंट माइंडेडनेस का एग्जाम्पल है। प्लीज चेंज। फॉगी एंड क्लटर्ड थॉट्स। दिमाग में इतने सारे विचार हैं क्योंकि हम हर पल हर घटना पे एक विचार बना के उसको छोड़ते नहीं है, हम उसके ऊपर विचार बनाते जाते हैं। हमारे पास फैक्ट्री है विचार बनाने की और विचार बनते जा रहे हैं हर पल। तो सोचो कि अपने पास एक स्टोरेज है और उसमें नॉन स्टॉप अगर आप कुछ डालते जाओगे तो कभी तो उसका स्टोरेज खत्म होगा। आप सबके पास फोन यूज करते हो, सबके पास फोन में चाहे कितने भी जीबी का फोन है, कभी तो ऐसा टाइम आता है ना कि वो कंप्लीट हो गया, वो फुल हो गया। और जब वो फुल हो जाता है तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सुबह उठी और मैंने अपना फ़ोन उठा के देखा तो उसमें एक नोटिफिकेशन पड़ा था कि मैं अब कोई मेल रिसीव नहीं कर सकती। मैंने कहा अरे इतने सालों के मेल, अब इनको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मेल बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद मेरे को एक और मैसेज आया कि मैं कोई फ़ोटो भी सेव नहीं कर सकती। तो मतलब मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी गया, मेरे ड्राइव का स्टोरेज भी गया और मेरे जीमेल अकाउंट का भी स्टोरेज गया। बहुत बड़ा टास्क था। मैंने उस दिन पूरा दिन लगा के काफ़ी कुछ डिलीट किया, बट उसके बाद भी उसने मुझे ऐसे बोला, मतलब 5 GB खाली हुआ, MBs में खाली हुआ। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा और क्या किया जाए जो ये ज़्यादा सा कंटेंट डिलीट हो जाए। तो एक दिमाग में बात आई कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, किसी अकाउंट पे गए और उसको सब्सक्राइब कर दिया या फिर वो ऑटो सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे खराब डेटा आना बंद हो। किसी ने कभी मुझसे कोई बात कही थी, किसी ने कभी मेरे साथ कुछ खराब किया था, वो व्यक्ति जीवित है चाहे नहीं है, मगर उस व्यक्ति की कही हुई बात आप ना जाने कितने साल अपने साथ रखते हो, उसको निकाल नहीं पाते क्योंकि आप उसको निकालने पे एफर्ट्स ही नहीं डालते। आप ताउम्र उस व्यक्ति को ब्लेम करते रह जाते हो और आपकी कहानी और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो उसको खाली करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक पीछे, जैसा कि मैंने बोला, फॉगी और क्लटर्ड थॉट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली जब स्टोरेज फुल हो रहा है तो क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा। अब इसका उदाहरण,
अगर मैं एक रूम में बहुत सारा कचरा डाल दूं, मतलब इतना कचरा मतलब पेपर बॉल्स बना के और रूम में फेंक दिए, अब वो इतने हैं कि आपको फर्श नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ एकदम कंप्लीटली भरा हुआ है, और उसमें एक छोटी सी ऑयल पिन डाल दूं और मैं बोलूँ आप इसको ढूंढो, क्या वो आसान है? आप उसको ढूंढ सकते हो उस कचरे में से? समय लगेगा, मेहनत लगेगी, और हो सकता है ना भी मिले और आप बोलो कि नहीं मिल रहा, छोड़ो, है ना? कुछ इसी तरीके से होता है हमारे दिमाग के साथ भी। इतना कचरा है जो सालों का है, आपने कभी डिलीट तो किया ही नहीं, कभी सिस्टम फॉर्मेट किया ही नहीं, तो जब सिस्टम फॉर्मेट नहीं किया तो वो आपका स्टोरेज खा रहा है, डेटा इकट्ठा होता जा रहा है। उसमें जब आप कोई नया विचार डालते हो या फिर कोई पुराना विचार उसमें से निकालना चाहते हो तो वो आसान नहीं होता, क्योंकि ना जाने उसके ऊपर कितनी परतें आ चुकी हैं, इसलिए हमको मेमोरी लॉस होता है, इसलिए हमको मेमोरी लॉस होता है और हम चीजें भूलते हैं। अभी तक समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोला करो था। वेरी गुड। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हमारे आज के समाज में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और हम अपने शरीर को समझते हैं कि वो एक रोबोट है, वो कुछ ना वो करता रहेगा करता रहेगा। घर में मेहमान अगर पाँव दुख रहे हैं मगर आप बैठोगे नहीं, आप काम करते रहोगे जब तक शायद गिर ना जाओ और जब तक काम खत्म ना हो जाए। अरे बेचारे थक गए हैं, उनको आराम देने की भी ज़रूरत है। अब वर्क एफिशिएंसी कैसे इफेक्ट होती है कि आप जब मल्टीटास्किंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि हम हर एक व्यक्ति बहुत सारे काम करता है एक बार में। मल्टीटास्किंग दिमाग नहीं करता, ये हमको शायद नहीं पता है। आप सब कंप्यूटर यूज करते हो, अगर एक ही समय पे आपने कंप्यूटर के 8-10 कीज साथ में प्रेस करके तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा ना? हैंग हो जाएगा तो कंप्यूटर भी नहीं करता, सोचो, हैंग हो जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद एक एक करके उसके विंडोज खुलना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। सिमिलरली तो समय आपका वेस्ट हुआ ना, अगर आपने एक ही प्रेस किया होता तो आपका समय बच गया होता, अभी आपका सिस्टम हैंग हो गया। ऐसी इसी तरीके से होता है, वर्क एफिशिएंसी भी आपकी इफेक्ट होती है। जब आप ज्यादा काम ले लेते हो अपने ऊपर तो आपको लगता तो है आप मल्टीटास्किंग हो, मगर आप जो काम 15 मिनट में कर सकते थे वो आप 1.5 घंटे तक खत्म नहीं कर पाते। तो इससे बेहतर है कि माइंडफुल रहो और एक एक करके एक काम करो तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। ये नहीं करोगे माइंडफुलनेस तो ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है। प्लीज चेंज नेक्स्ट। ओके, हम में से कितने लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, है ना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज गुड इफ इट्स कंस्ट्रक्टिव। अगर ये अच्छी है, अगर पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छी है, आप बहुत कुछ बना भी सकते हो। मगर अगर ये खराब है तो ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। घर बैठे बैठे किसी का फोन, आप उसको फोन कर रहे हो, उसका फोन नहीं उठ रहा, तो हमारे दिमाग में एक से बढ़कर एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कुछ पलों में, और वो इतना घबरा देता है कि एंजाइटी होने लगती है और ना जाने आप कुछ स्टेप्स लेने लगते हो, कुछ और कर लेना चाहिए, कहाँ हुआ क्या हुआ। ये सब का कारण है कि हम जागरूक नहीं हैं। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, माइंडफुल हो जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। बच्चों के लिए स्पेशली टीवी आ गया है बीच में, तो बच्चे अपना 100% फोकस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल, टीवी, मजबूर है ना, मन करता है देखने का। तो जब आप देखते हो तो आपका खुद का पोटेंशियल, आपकी खुद की क्रिएटिविटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो थोड़ी देर देखते हैं और फिर इधर उधर हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम थोड़ी देर कोई काम करते हैं और फिर हमारा मन ओवर थिंकिंग स्टेट में चला जाता है और हम उसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाते। माइंडफुलनेस आपको मदद करेगा इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही निर्णय लेना। अब आप सोचो, इतने सारे थॉट्स हैं, आप में से कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है कि दिमाग में 2-3 बातें साथ में चल रही हैं, कोई डिसीजन लेना है,
लड़के की शादी के लिए लड़कियां देखी तो 4 लड़कियां हैं, 2 पसंद आई और 2 में से फिर आप सोच रहे हो ये वाली कि ये वाली, अब दोनों तो नहीं हो सकती, मगर आप इस हद तक कंफ्यूज हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली चूज करूं। हाँ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अपने रूटीन लाइफ में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा डिसीजन ले कौन सा डिसीजन नहीं ले, और उसमें कई बार हम गलत डिसीजन लेकर फिर रिग्रेट करते हैं कि ये मैंने क्यों कर दिया। तो जब आप माइंडफुल रहते हो तो धीरे धीरे करके आपका ये डेवलप होने लगता है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत समय नहीं लगता, आप जल्दी ले पाते हो और सही लेते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबने सुना है? हाँ, हम नहीं तो हमारे आसपास के हमने लोग भी देखे हैं जो इस चीज को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। अब इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक टीचर ने क्लास में अपने हाथ में एक पेन लिया और उसको ऐसे रखा और बच्चों से पूछा कि बताओ इस पेन का वजन कितना होगा। तो किसी बच्चे ने बोला 5 ग्राम, किसी ने 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो तक वो पेन पहुंच चुका था बच्चों का बोलते 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 बोलते। टीचर सिर्फ ना बोल रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चों ने बोला सर अब आप ही बता दो, हमको नहीं पता कि कितना भारी है ये पेन। तो सर ने बोला जब मैंने उठाया था तब तो ये 10 ग्राम का ही था, बट इतनी देर से मैं इसको होल्ड करे हुए हूँ ना, अभी 1 किलो का हो गया है ना। होता है ना, जब आप बहुत देर तक किसी चीज को हाथ में पकड़े रहो तो ये दुखने लगता है, तो वो चीज भारी लगने लगती है। यही कारण है इस चीज का। हम अपने जीवन में जब निकाल नहीं रहे हो, अंदर रखे हुए हो और उसको पता नहीं कितने दिन तक उसके बारे में सोच रहे हो, उस पे रिएक्ट कर रहे हो, तो वो क्या बनता है, वो बीमारी बन जाती है। एक्चुअली पता है आपको कि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मैं तो बोलती हूँ बड़े शहरों की बीमारी है ये, पहले नहीं होती थी। पहले लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते थे और पहले की एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप की होती थी, इसलिए ये सब नहीं होता था, मगर आजकल तो बच्चों में भी होने लगा है। और प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत कॉमन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हो ना? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जिसमें हम काम को टालते जाते हैं, खत्म नहीं करते, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये सब का कारण यही है कि हम जागरूक नहीं है, हम माइंडफुल नहीं है। प्लीज चेंज। ये तो मैंने शुरुआत में ही पूछा था, पर्पस लाइफ का, आए क्यों जी रहे हो, क्या करना चाहते हो। जब यही नहीं पता तो फिर आप यहाँ से वहां से वहां ना जाने कब तक घूमोगे। आप सोचो, आपको एक कार में बैठा दिया जाए और कार को ड्राइवर को बोला जाए बस इसको ले जा। अब वो ड्राइवर को कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, उसे कुछ भी नहीं पता। क्या होगा ऐसी स्थिति में? पता नहीं कहाँ जाओगे। वैसी ही स्थिति हमारी होती जा रही है जब हम बिना पर्पस के लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके लिए जरूरी है पता तो हो पहले कि आप चाहते क्या हो, वो जरूरी है जानना। पता है हम लोगों ने हमारे अंदर इसको अवेयरनेस ही नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम समय ही नहीं लगाते। मैंने कई लोगों से पूछा कि माइंडफुल प्रैक्टिस करते हो क्या, तो नहीं, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है आपके लिए, खुद के लिए टाइम नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तभी लाइफ में मजा आएगा। तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो जिसने मेरे जीवन को बदला था। मैं आप सबको पूछती हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछना कि जिस पल आप अपने डेथ बेड पे हो और आपके मन का आखिर विचार क्या होना चाहिए? मजा आ गया, क्या लाइफ थी, मजा आ गया। नहीं तो हमारे दिमाग में क्या रह जाएगा, इससे ये नहीं कहा, उससे वो नहीं कहा, ये वाला काम रह गया, ये नहीं हुआ। ये मजा आ गया वाली स्टेट तक जाने के लिए सच में पूरे जीवन मजा लाना पड़ेगा, तब जाकर उस समय मजा आएगा, है ना। प्लीज चेंज। हमारा शरीर हमेशा प्रेजेंट में रहता है, हमारी सांसें हमेशा प्रेजेंट में चलती हैं, हमारी धड़कनें हमेशा प्रेजेंट में चलती हैं। तो हम क्यों पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं? हम रहते हैं ना, हम पास्ट फ्यूचर में जाते हैं। पास्ट से डर आता है, फ्यूचर से डर आता है। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारण
स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण, तरह तरह की बीमारियों होने का कारण हमारा पास्ट और फ्यूचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद कर दो, मगर फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो तब प्लानिंग बाद में होगी, बट वो करनी तो अभी पड़ेगी ना। बाद में क्या होगा उसका किसी को कुछ नहीं पता। आपको जो करना है वो अभी करना पड़ेगा। कोविड आया था, किसको पता था कि कोविड आएगा और ऐसी लाइफ बदल जाएगी? कितने लोग थे, पता नहीं कौन कौन से लेवल पे थे, कहाँ क्या कर रहे थे, रहे ही नहीं। आज हमारे बीच में वो नहीं है। उन्होंने सोचा था क्या? हम सब भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब ने भी एज इट इज लाइफ जैसी हम प्लान करते हैं वैसी जरूरी नहीं है कि वैसी हो, मगर जब वो परिस्थिति आती है, वो सिचुएशन आती है, हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं, उससे फाइट करते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। तो मतलब हम सक्षम हैं हर स्टेट को हैंडल करने के लिए, तो फिर उसके बारे में सोचे क्यों? सिर्फ अपने को सक्षम बनाने पर काम करें। नेक्स्ट, ओके, नाउ हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जैसे मैंने बोला समय का अभाव है, तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, ये कोई ऐसा कोई टूल नहीं है कि आप इसको लगाओ और कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है और ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कैसे होगा? आप चाहे खाना खाते हो, पानी पीते हो, चाय बनाते हो, नहाते हो, बात करते हो, डांस करते हो, किसी भी स्टेट में आप पूरी जागरूकता के साथ करो अगर, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम नहाने जाते हैं, स्पेशली महिलाएं, टाइम नहीं होता उनके पास, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो बहुत कम समय में वो अपने काम निपटा के बाहर आ जाते हैं। और इवन उनके पास अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना आईने में खुद को देखते ही नहीं है, अपने ऊपर समय ही नहीं लगाते और हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत कुछ करना है। हम घड़ी की नोक पे चलते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और हमारा लंबा लंबा प्लान्स होते हैं, क्योंकि हम मल्टीटास्कर्स हैं ना। तो जब आप नहाने जाते हो तो कुछ पल के लिए सिर्फ वो एंजॉय करो। कोई जज करने की जरूरत नहीं है, कैसा लग रहा है, कितना समय बचा है, मुझे आगे क्या काम करने हैं। हम जो कर रहे होते हैं हम उसको करने की बजाय सोचते हैं अगला क्या करना है, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए फिर मुझे आगे क्या करना है। हमेशा ऐसा ही होता है ना, आगे क्या करना है। उस पल में आप उसको एंजॉय करो। कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा वो जो पानी ऊपर से गिर रहा है ना, वो पता नहीं कौन से हिमालय की पहाड़ी से कोई झरने के नीचे आप खड़े हो और आपको इसको एंजॉय कर रहे हो। और ये सब चीजें मैं आपको किताबों से नहीं बोल रही, मैं सब चीजें आपको ऐसी बोल रही जो होता है। एक बड़ी अच्छी माइंडफुल एक्सरसाइज है, मैं आपसे अभी कराती हूँ कि आपको आदत होगी, हम सब सांस तो लेते हैं सुबह से लेकर रात तक। भगवान ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। भगवान को पता है इन लोगों के पास टाइम नहीं है, कभी इनका मूड खराब हो जाएगा तो बोलेंगे सांस नहीं लेनी। अब ये सांस नहीं लेंगे तो क्या, मेरा तो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में रखा है। मगर आप लोग जरा एक एक्सरसाइज करके देखो, मुझे खुद बताओ, उसके बाद में बात करूंगी। अब आंखें बंद करो और अपनी सांस को सिर्फ देखो, एज इट इज सांस को देखने की कोशिश करो। कैसी है, कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, कैसे कलर की है, क्या शेप है, जो भी आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, सिर्फ देखो। ओके, वापस आएंगे। कोई बताना चाहेगा अपनी सांसों के बारे में कि कैसी थी? किसी को दिखाई दी? हाँ कि ना? सांस ही नहीं दिखाई दी, महसूस किया। ओके, चलो आप बताइए, आपने क्या महसूस किया? गले से वापस आ रही है ना? ओके, आपको पता है सांस का जो सिस्टम है वो स्टमक तक है, पेट तक।
नाक से पेट तक, मगर पेट तक सांस को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारे 90% लोग चेस्ट से सांस लेते हैं, समय नहीं है, चेस्ट से सांस वापस आ जाती है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी राज की बात बताती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, जैसे आर्या सर हमको हमेशा इंस्पायर करते हैं 100 साल जीने के लिए। हमारे सामने आंटी बैठे हैं 86 ईयर्स के, सर बैठे हैं 75 ईयर्स के, मगर आपने नोटिस किया वो लाइफ स्पैन बहुत छोटे होते जा रहे हैं। पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बड़ी उम्र की बीमारियां हुआ करती थी, आजकल बच्चों में होने लगी है। पीसीओडी लड़कियों में बहुत कॉमन हो गया है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कम उम्र में पीछे की तरफ आती जा रही है। इवन 70-80 साल का स्पैन इज नॉर्मल, कि कोई 70-80 साल जी गया है ना। इसके पीछे क्या कारण है कि जिस तरीके से मैंने बोला कि दिमाग की एक कैपेसिटी है, वो एक समय तक इकट्ठा करेगा डेटा, उसके बाद वो हैंग होने लगेगा, जो हमारे साथ मेमोरी को लेकर अभी हो रहा है। सेम वे हमारी सांसों की भी कैपेसिटी है, ये अनलिमिटेड नहीं है। और हमारे बॉडी में इतना खूबसूरत मैकेनिज्म है कि जब हम 50 साल की सांसों को 25 साल में कंज्यूम कर लेते हैं, तो बॉडी में एक अलार्म, एक इंडिकेशन जाता है, इसके 50 साल की सांसें पूरी हो गई। तो 50 साल की उम्र हमको 25 साल पे महसूस होने लगती है। और ऐसे ही हर चीज पे वो होता जा रहा है, इसलिए लाइफ स्पैन छोटा हो रहा है, बीमारियां हम घेरते जा रहे हैं। कारण सांस जल्दी जल्दी लेना। मगर आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे कुछ ऋषि मुनि हुआ करते थे, अभी भी हैं ऐसे और हुआ करते थे, जो ना जाने ऐसे 2000 साल, 2500 साल, और एक के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है कि वो उनकी उम्र 25 साल के ऊपर बढ़ी ही नहीं। मतलब उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल अपनी सांसों पे ले आया था, और जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं तो आपकी हार्ट बीट भी कंट्रोल हो जाती है। जब कभी भी किसी को अगर स्ट्रेस या एंजाइटी की कभी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो एक एक्सरसाइज करके देखना। आप लोग कभी दौड़ते हो तो कैसा होता है ना, सांस तेज तेज चलने लगती है, सांस तेज चलती है और फिर दिल भी बहुत तेज तेज धड़कता है, इतना तेज धड़कता है कि बाहर से महसूस होता है कि दिल धड़क रहा है ना। तो जब आप कभी एंशियस होते हो, घबराते हो किसी चीज को लेकर, या आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, तब भी सेम चीज होती है, सांस बढ़ जाती है और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी बॉडी उससे खुश नहीं होती, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर कभी ऐसा हो तो 1 मिनट के लिए सिर्फ चुपचाप बैठ जाना, और अभी एक एक्सरसाइज कर रही हूँ वो एक्सरसाइज कर लेना, तो आपका एकदम हार्ट रेट नीचे आ जाएगा, ब्रेथ रेट नीचे आ जाएगा, और आपको जो घबराहट हो रही थी वो चली जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बेदिंग का बताया, वैसे ही खाना खाओ माइंडफुली, पानी पियो माइंडफुली, डांस करो, नाचो गाओ, मस्त रहो, और सब कुछ माइंडफुली करो, पूरी जागरूकता के साथ। तो धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी, और आप में अपने आप ही और आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमता इंप्रूव होने लगेगी। एक्सरसाइज करते हैं, आंखें बंद करेंगे, और आपको ने नोटिस करो कि इस कमरे में ना एसी की एक आवाज आ रही है, हल्की सी ज़ करके, ये वाले एसी में से आ रही है, यहाँ से सुन के देखो। जब सब शांत हो जाएंगे तो आवाज और भी क्लियरली सुनाई देगी। आपको अपना पूरा ध्यान इस आवाज पे लगाना है। आंखें खोलेंगे, सुनाई, आवाज सुनाई दी, एकदम क्लियर थी। विचार कितने थे? बहुत कम, बहुत कम। जीरो वाले भी होंगे जिनके विचार जीरो थे। क्यों थे? क्योंकि आपने दिमाग को बड़े प्यार से इंडिकेशन दिया था कि ये आवाज को सुनो। आपके दिमाग बहुत ओबीडियंट है, उसने आपकी बात मान ली, उसने आवाज सुनी, तो विचार बनने की जगह ही नहीं मिली। हम उल्टा काम करते हैं, हम विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे रुकेंगे? सांस रोक सकते हो क्या? हार्ट बीट रोक सकते हो क्या? शरीर की कोई भी कार्य को आप रोक सकते हो क्या? तो थॉट्स को भी नहीं रोक सकते। सिर्फ आपको माइंडफुल हो जाना है और ये समझना है कि कौन सा विचार किस समय मुझे अपने अंदर लाना चाहिए, क्या चीज मेरे अंदर कैसे रिएक्ट करेगी,
धीरे धीरे करके ये स्थिति आपकी हमेशा बन जाएगी। ठीक है, एक बार और ये एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद, पूरा ध्यान इस आवाज के साथ, थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगी। आंखें खोलेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये टेक्निक को आप दिन में 10, 12, 20, 50 जितनी बार चाहो उतनी बार आप यूज कर सकते हो एंड इट इज इक्वली टू मेडिटेशन। अगर आप ये प्रैक्टिस भी करते हो तो धीरे धीरे करके आपके अंदर अपने आप ही थॉट्स की जो फैक्ट्री है वो कम मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, माइंडफुलनेस समझ में आ गया। नाउ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन माइंडफुलनेस के एक स्टेट बाद की है। तो माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है और मेडिटेशन एक स्टेट है। जब आप माइंडफुल होने लगते हो, हर चीज को लेकर हर काम जागरूक होके करते हो, तो धीरे धीरे करके एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें आप सिर्फ विटनेस करते हो, आप कुछ करते नहीं हो। तो ध्यान में कुछ नहीं किया जाता। अगर आपको कोई ध्यान बताए कि ध्यान में ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो सिर्फ आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराते हैं। फिर धीरे से आपको एक स्टेट में लेके जाते हैं और उस स्टेट में ठहरना और जो हो रहा है उसको एज इट इज देखना इज मेडिटेशन। तो फर्क समझ में आया माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में? और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको 2, 2.5, 3 घंटे बैठना जरूरी है। आपने अगर 5 मिनट 10 मिनट भी अच्छे से पूरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप उस स्टेट में बैठ पाते हो जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और आप एज इट इज देख पाते हो, तो इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, ये बहुत बड़े मिथ हैं मेडिटेशन को लेकर कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है, समय चाहिए, उम्र दराज ही किया जाता है और बहुत सारे विचार आते हैं। तो मेडिटेशन कर ज़्यादा करते जाओगे तो आप में अपने आप मेडिटेशन डेवलप होने लगेगा। आप रिलीजन से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। बड़े बुजुर्ग करते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। और आज के समय में बच्चों में भी अवेयरनेस आ रही है और बच्चे इसको करना पसंद करते हैं। मेरी 9 साल की बेटी रोज मेडिटेशन करती है। अगला, मे गेट अनवांटेड थॉट्स। जो अनवांटेड थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि विचारों को रोको मत, उनको सिर्फ देखो। जब आप देखोगे तो वो अनवांटेड गेस्ट के टाइप्स है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? आपने उसको बैठा, वैसे हम लोग ऐसा करते नहीं है, अतिथि देवो भव। मगर अगर आपने ऐसा किया कि ना आप उससे खाना पूछो ना आप उससे पानी पूछो, आप उसको कोने में बैठा रहते हो, उससे बात भी नहीं करो, कितनी देर बैठेगा? चला जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। तो विचारों का भी ईगो हर्ट हो जाता है और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो जितने भी इररेलेवेंट थॉट है वो अपने आप ही बाहर निकलते चले जाते हैं। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अब आप इसको बंद कर दो, मैं चला दूंगी। ओके, मेडिटेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, कोई नियम नहीं है। आप दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। कोई समय नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक नियम है, रोज करना। बस एक डिसिप्लिन बनाना कि आप रोज 1 मिनट अपना मेडिटेशन या फिर अपना खुद के लिए निकाल रहे हो। बस वो 1 मिनट का ध्यान आपके जीवन में अपने आप जगह बना लेगा और जितनी ज़रूरत है उतना अपने आप होने लगेगा। कहाँ बैठना है, कैसे करना है, कहीं भी, घर में किसी भी कोने में कभी भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, ज़मीन पे बैठ सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो। बस नियम एक ही है कि रोज़ करना है। ओके, अब हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं। कुछ 10 मिनट के आसपास एक मेडिटेशन कराती हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। किसी को कोई सवाल होगा तो उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो रिलैक्स योरसेल्फ। आप लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंखें बंद। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कंफर्टेबल एंड स्ट्रेट, मतलब स्टिफ नहीं करना है, कंफर्टेबल एंड स्ट्रेट। स्पाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिटेशन में।
और अपना धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी सांसों से जोड़ेंगे। गहरी सांस अंदर, महसूस करें पेट तक, तो सांस आपके नॉस्ट्रिल से होती हुई पेट तक जा रही है और फिर पेट से बाहर आ रही है। देखने की कोशिश कीजिए, देखने की या महसूस करने की। एक बार और गहरी सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। इनहेल, एक्सेल। और अब की बार जब सांस बाहर छोड़ो तो मुंह से ये आवाज के साथ छोड़ना। गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ेंगे। नाउ रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अपने सर की ओर लेके जाएंगे और महसूस करें कि आपका सर, आपका दिमाग, आपका माथा धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। ढीला छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं और महसूस करें कि आपका सर रिलैक्स होता जा रहा है। फिर आपके फेशियल मसल्स, आपकी आँख, नाक, मुंह, कान, चिन रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके दोनों शोल्डर, जिसमें आपने जिम्मेदारियों का बहुत वजन डाला हुआ है तो उसमें एक स्टिफनेस होती है, महसूस करें कि इस पल वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। दोनों हाथ, लेफ्ट साइड रिलैक्सिंग, राइट साइड। आपका चेस्ट, आपका दिल रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्स्ड। आपका पेट रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्स्ड। आपके दोनों पैर, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्स्ड। और फिर आपके दोनों फुट, पाँव रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्स्ड। और सबसे ज़रूरी आपकी स्पाइन, महसूस करें आपकी स्पाइन नीचे टेल बोन से लेकर सर की तरफ सारे वर्टेब्रा एक एक करके रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स और कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब आपका पूरा शरीर, आपके सर से पाँव तक, आपकी स्पाइन, पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। अब महसूस करें जैसे आपके सामने एक कांच की लिफ्ट है, 10 कदम दूर कांच की लिफ्ट। लिफ्ट की ओर जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बटन प्रेस करके लिफ्ट का दरवाजा खोलेंगे और लिफ्ट के अंदर जाएंगे। उसमें एक अप एरो बना हुआ है रेड कलर का, उसको प्रेस करेंगे और लिफ्ट को कमांड देंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। अब वो कांच की लिफ्ट से आपको चारों तरफ का सब कुछ दिखाई दे रहा है और आप ऊपर उठ रहे हो, ऊपर 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 ऊपर। आप ऊपर से सब कुछ नीचे का देख पा रहे हो, सब छोटा होता जा रहा है क्योंकि लिफ्ट कांच की है, सब आपको दिखाई दे रहा है बट उसका साइज छोटा होता जा रहा है।
आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपकी ऊर्जा लिफ्ट के साथ ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर 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 ऊपर। अब सब कुछ बहुत छोटा हो गया, आप उसको पहचान भी नहीं पा रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे नीचे डॉट्स लगे हुए हैं। आपकी ऊर्जा और ऊपर उठ रही है, ऊपर 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 ऊपर। अब नीचे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ जैसे बादलों ने घेर लिया है, सब कुछ सफेद। अब आप यहाँ पे बटन दबाते हो, लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा और बाहर से एक ठंडी हवा आपके चेहरे पे आप महसूस कर सकते हो। महसूस कीजिए। अब आप बाहर निकलेंगे, हवा को महसूस करेंगे, थोड़ी सी ठंड लग रही है और फिर आप धीरे धीरे, आपके सामने एक सेक्रेड पॉन्ड है। सेक्रेड पॉन्ड मतलब एक पवित्र दैवीय तालाब आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है, सिर्फ 10 कदम की दूरी पर। उसकी तरफ चलेंगे। 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तालाब पे पहुंच गए। अब तालाब के पानी को छू के देखो, बाहर बहुत ठंडक है मगर तालाब का पानी गुनगुना है। अब आप इसके अंदर पैर डाल के भी बैठ सकते हो और नहीं तो इसमें डुबकी लगा सकते हो, क्योंकि इस तालाब में आज वो सब चीजें जो आप चाहते हो आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं लेके जानी है। फिर चाहे वो गुस्सा है, चाहे अहंकार है, चाहे कोई दर्द है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई भी इमोशनल ट्रॉमा, ग्रीफ जो भी है, आज इस तालाब में आपसे 100% छूट जाएगा और आपकी पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगी। तो तालाब में डुबकी लगाएंगे और धीरे धीरे करके वो सब कुछ छोड़ना शुरू करेंगे जिसको आपको अपनी लाइफ में आगे लेके नहीं जाना है। पहली डुबकी महसूस करें। दूसरी डुबकी, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी निकल गया। अगर कोई बीमारी है तो वो भी निकल गई, कोई दर्द है तो वो भी निकल गया। तीसरी डुबकी, अगर कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो आपकी सफलता के रास्ते में बीच में आ रहा है तो वो भी निकल गया। और एक चौथी डुबकी जिसमें आप कंप्लीटली हील हो जाओगे और एक चेहरे पे मुस्कान के साथ बाहर आओगे। महसूस करें चेहरे पे वो मुस्कान। और अब आप उस तालाब के कोने में आके बैठ जाइए। जैसे ही आप कोने में आके बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कुछ ब्लैक कलर का बाहर निकल रहा है, एक काले बादल के जैसा, एक काले धुएं के जैसा। वो सब नेगेटिविटी है जो अब आपके साथ नहीं जाएगी, वो सब यहीं छूटती जा रही है। महसूस करें एक ब्लैक कलर का धुआं अपने अंदर से निकलता हुआ। अब आप पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, आप हील्ड हो चुके हैं और आप बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहे हैं। फिर से वापस जाएंगे लिफ्ट की ओर। धन्यवाद करेंगे प्रकृति का और इस तालाब का जिसने आपको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। 10 कदम दूर वो लिफ्ट है, वापस जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लिफ्ट का दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, नीचे का एरो दबाएंगे रेड कलर का और लिफ्ट नीचे की ओर, नीचे 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 नीचे। अब वो सारी चीजें आपको थोड़ी दिखाई देने लगी हैं। लिफ्ट और नीचे 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 नीचे, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा और नीचे 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 और आप जमीन पे पहुंच गए हो। लिफ्ट का दरवाजा खोलेंगे, लिफ्ट के बाहर आएंगे और अब प्रकृति को धन्यवाद करते हुए, खुद को धन्यवाद करते हुए 10 के काउंट पे, मैं 10 तक काउंट करूंगी, 10 पे आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your palms. Keep it on your eyes. Cover your face and come back. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी हीलिंग के लिए और आपके अंदर की क्लींजिंग के लिए। तो ये जब चाहें जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपको फ़ायदा देगी, है ना। और जितनी भी हमने सुबह से लेकर अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस में विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपको पिक्चर क्लियर करने में आपकी धीरे धीरे करके मदद करता है। तो प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ। आज शुरुआत की है ना, अब इसको छोड़ना मत, ठीक है। कोई डाउट, क्वेश्चन, किसी को कुछ